Assalamu alaikum and a very warm welcome to the platform of Unknown Incredible Women of Pakistan. Today I'm extremely delighted to introduce my guest, Miss Ayman, who is the director of the Parvarish Foundation. She is such a beautiful person who is not beautiful externally. When I looked her for the very first time, she has a golden heart which is always very reflecting out of her personality. A very contentment in her soul and a smile on her face has made her always stand out amongst a whole crowd of people. And somehow I always got attracted towards her and I always wanted to talk to her at length. And finally, I've got this moment that she's sitting in front of me and we are going to talk about certain things. एमन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाईलाइट फीचर ऐसा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया when I met her. She is very much into social work. और जब भी कोई सोशल वर्कर जिससे भी मिलते हैं नॉर्मली ऐसा होता है कि उनकी किसी एक सर्टेन एज पे जाके आपको ऐसे लगता है कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए, अब मुझे कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है. लेकिन जब मैं एमन से मिली, आई स्पोक टू हर ऑन फोन एंड व्हेन आई मेट हर एंड शी एंटर्ड माय ऑफिस एंड आई वाज लाइक, is this a same girl I was talking to? I just kept on looking at her for a while and then we started building up on conversation. So let's go and meet Ayman, जो कि काम कर रही है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि परवरिश फाउंडेशन, उससे ही आपको पता चल गया होगा, for the better and promising future of the Pakistani nation, because she's educating the children, those who are not able to get quality education. Not only that, ये उनकी परवरिश में यानी उनके brought up में भी बहुत integral part play कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. As always, looking out of the world, looking beautiful in this color and attire, and as always, you're smiling. Thank you so much. Ayman, who influenced you when you started up this work? With this work, I mean when you started to giving in your role and playing your role for the underprivileged or for the children who are not given proper facilities in our society. What was the starting point of this big part of work? There was no any starting point. Right. I just joined in Parvarish Charity Foundation as an intern. तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टार्ट होती गई, देन प्रमोशंस एंड ऑल दैट. नाउ आई एम द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन देयर. जबरदस्त. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बच्चों के साथ थोड़े से इंडल्ज होना, उनकी एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, उनकी मैंने पीटीएम्स अटेंड करना शुरू की, तो दैट टाइम आई केम टू नो दैट ये बच्चे मतलब कुछ हैं और इनसे हमने कुछ निकालना है. Ayman is very very punctual about PTMs. She always comes up with her homework done. वो आके प्रॉपर आपसे पूछेंगी ये हुआ ये नहीं हुआ या वो हुआ. इतने सारे बच्चों के बारे में इतना अलर्ट रहना और इतना डाटा लेकर, इतना प्रिसाइज डाटा लेकर, नो वंडर Ayman you got promotions very quickly. Yes, everybody wonders about this. अच्छा, ऐसे देन जब मैंने उनको जाके पीटीएम वगैरह अटेंड करनी, और जब सबसे पहले मैं जब पीटीएम अटेंड करने गई थी, उनके मैंने रिजल्ट देखे थे और वो बहुत अच्छे थे. दैट वाज एक्सीलेंट. और तब मुझे फील हुआ था कि जैसे मैं बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे होता है ना, फीलिंग आती है आपको कि हाँ ये बिल्कुल आपके अपने बच्चे हैं. उनके सक्सेस देखकर when I met you कि I'm a mother myself. I know कि हम लोगों के क्या concerns होते हैं being a parent. बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है, हम क्या क्या स्कूल से हमारी expectations होती हैं. But when you walked in and we both talked about all the children we were taking care of, I was surprised कि एमन को इतनी intricate details के बारे में कैसे पता है. Were you taking care of any siblings or how it all, I mean, नहीं ऐसे नहीं. As a human you are very much conscious about. वो टाइम टू टाइम आप ऐसे हो जाते हो जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको बच्चों के बारे में भी सारी वो पता चल जाती हैं. और फिर ऑब्वियसली अब आप अगर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपने करना है, तो सारा कुछ हर कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करना और आपको इतना फुलफिलिंग उसको लेकर नहीं. मुझे लगता है कि अगर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको उसी तरीके से लेकर चलो तो दैट्स गुड ना. अगर आप उसको अपने ऊपर से ऐसे ही लेट डाउन करते जाओगे, ठीक है कोई केयर नहीं और ये वो सब कुछ, तो इस तरीके से तो नहीं होता. हाँ, अगर आपके बच्चे हैं जिससे उनके बारे में एक एक चीज़, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, उनकी स्टेशनरी से लेकर यूनिफॉर्म, स्कूल की फीस, क्लास की अटेंडेंस, क्लास में पार्टिसिपेशन, एवरीथिंग, वो हम लोग that counts a lot and you are into everything, into uniform, checking their sizes and making sure कि हर एक का सारा segment पूरा. हाँ, ये करना पड़ता है. I've seen you doing all that thing. Ayman, looking back at the last 5 years, what is the highlight? कौन सी ऐसी चीज़ है which is very close to your heart? Close to my heart.
ना पड़ेगा। चलो, you think on that time. हाँ अच्छा, ठीक है। even since you're very much involved with the children, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच हो जाती हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, ऑब्वियसली हमें ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ये फुलफिलिंग, सेल्फ फुलफिलिंग सी चीज़ होती है, आप बहुत खुश रहते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन भी होती है कि मैं अपना रोल प्ले करी हूँ। लेकिन समटाइम्स इसका एक थोड़ा सा ये साइड भी है कि आप समटाइम्स इमोशनली हर्ट भी हो जाते हैं बाय लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, बाय गेटिंग वेरी मच इन्वॉल्व्ड विद द अदर पीपल एंड ऑल दैट. How do you cope up with how do you keep a balance with your emotional dealings and in dealing and putting up things practically on the platform? अगर कोई इस किस्म का कोई सीन है, जैसे कोई इस काफ़ी स्टोरीज आती हैं, काफ़ी ऐसी है कि अभी कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन आ गई है, हमारे पास कोई स्टोरी ऐसी आ गई है कि वाकई सुन के ऐसा लगता है कि जैसे, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि दुनिया में ये सारी चीज़ें भी हैं, इतने दुख भी हैं जिसमें और लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमें घर बैठ के उसको हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाँ ये और वाकई इस दुनिया में हो रहा है। बट जब आ जाते हैं तो वो टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत हम कर जाते हैं कवर, इतना अफेक्ट होता भी है, और फिर समटाइम्स आपको दिल करता है जस्ट कि बस यही एक है, हमने सिर्फ इन्हीं को ही हेल्प करना है और इन्हीं के साथ ही हमने इन्हीं को हमने साथ लेकर चलना है। लेकिन जब हम दूसरे साइड पे जाते हैं तो उधर और भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, हमने उसको भी ओवरकम करना होता है, तो होता है, लेकिन हो जाता है ऐसा ऐसा। लेकिन सिंस आप इन बच्चों को लेके आप इनको एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल है कि उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं ये बच्चे। तो हाउ डू यू कन्विंस देम? उनको ऑब्वियसली आप बताते होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस भी बताते होंगे। समटाइम्स इन पेरेंट्स को ये भी लगता होगा हमारे बच्चों को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, कि हमारे बच्चे हमारे अंदर से कहीं अपरूट ना हो जाए, ऑर्बिट में से ना निकल जाए। तो हाउ यू कोप अप विद दैट? कभी कोई ऐसी फैमिली कम अक्रॉस है जिसको आपको हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया हो? नहीं, अभी तक ऐसे नहीं हो रहा। हाँ, हमें पेरेंट्स को कन्विंस करने का होता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे ऐसे हैं जिनको वो अपना सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी बना सकते हैं, जिन एजेस में वो लोग हैं। अब जैसे अगर हम वेरी टैलेंटेड, हाँ दे आर, तो इसलिए अगर हम उनको छोड़ देते तो वो उनके पेरेंट्स ने क्या करना था, वो उनको साइड पे अपना कोई ना कोई बिजनेस तो ऑब्वियसली देंगे, स्टार्ट करते, छोटे छोटे कामों पे लगा देते, वो अर्निंग स्टार्ट कर देते। लेकिन ये कन्विंस उनको भी करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, ठीक है, और कि हाँ ये बच्चे आपके फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा एहसास बन सकते हैं आपके लिए। तो फिर दूसरा क्या हुआ था कि बच्चों को ये करना कि काफ़ी फैमिलीज ऐसी थी जो कहती थी नहीं हम इनसे तो अपना सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं, लेकिन हमने उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया नहीं, ये आपके बाद आपकी पूरी नस्लों को, आपकी पूरी नस्ल इससे संवर सकती है, ठीक है ना। तो इससे ये नहीं है कि आप सिर्फ एक इसको पढ़ा के आपकी पूरी की पूरी नस्ल इससे संवर सकती है। घर का एक बच्चा भी अगर पढ़ जाता है ना, तो उससे पूरी आपकी नस्ल संवर जाती है, वो बाकी उसके घर के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क आ जाता है। तो उससे भी होता है कि मैंने बाकी भी अपने सिबलिंग्स को पढ़ाना है। You are paving a path for progressive Pakistan because you are helping you are providing quality of education to each and every child, इसका ख्वाब होता है। परवरिश फाउंडेशन की बहुत खास बात ये है कि यहाँ बच्चों को ये लोग ऐसे नहीं करते कि किसी भी XYZ स्कूल में ही उनको बिठा दें या उनके एडमिशन्स करा दें। ये प्रॉपरली जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, हाई क्वालिटी स्कूल्स के अंदर वो बच्चे जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म, हर चीज़, उनकी स्टेशनरी, उनका बैग, उनका लंच, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से जेल इन हो जाएं विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हूसोएवर इज अराउंड देम। एमन, इसको कैसे हेल्प आउट करते हो? बिकॉज आई हैव सीन कि आप उनको ट्यूशंस भी देते हो इवनिंग में। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो हम पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन है दैट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फिर टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आप लोग उनको फिर शाम में ट्यूशंस भी देते हो ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो इजीली एक फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। ऑब्वियसली अगर हम उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके गए हैं स्कूल्स में, तो उनको घर में ऐसे ट्यूटर्स नहीं मिल सकते जिनसे वो अपना जो होमवर्क वगैरह जो भी टास्क है वो कवर कर सके। तो हम उनको क्या करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे स्कूल में भेजते हैं। स्कूल्स हमारे बेस्ट स्कूल हैं पाकिस्तान, लाहौर के यहाँ पे जो बेस्ट स्कूल्स हैं। हाँ, तो हमने उन बच्चों को वहाँ एडमिशन करवाया हुआ है। तो उससे ये होता है कि हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन उन बच्चों के दरमियान में अपने बच्चे जाके बिठाए हुए हैं, जिससे उनको लगे कि हाँ हम कम नहीं है, हम भी बैठ के पढ़ सकते हैं। दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैं कहती हूँ कि मतलब अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड बिजनेसमैन के अगर बच्चे हैं तो वो उनसे भी मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। तो उससे फिर ये होता है कि उसके बाद फिर सारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, देन ट्यूशन को हमारे शाम को ट्यूशन हमारे पास आते हैं।
शाम को जब हमारे पास आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि हमारे जैसे और भी हैं, हम हम्म। अकेले नहीं हैं, हम्म। हमारे जैसे और भी हैं, हमारे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं और बच्चे भी हैं जो इसी तरह से स्कूल्स में जा रहे हैं, ताकि उनको भी एक होता है ना, एक एहसास कम तरी जो होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उनका, वो उनकी कभी वो खराब नहीं होती। और आप उनको इमोशनल हेल्प भी देते हैं फॉर इंस्टेंस समटाइम्स, क्योंकि इन बच्चों के वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और ऑब्वियसली इन फ्रेंड्स के पास अच्छे गैजेट्स होते हैं या व्हाटएवर, तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी इमोशनल थेरेपी की भी जरूरत होती है। ऑब्वियसली वो हमें करनी पड़ती है। वो अब आप खुद ही देख लें, वो वाले जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स के बच्चे हैं उनके साथ हमारे बच्चे जाके बैठ रहे हैं, हमने उनका वो बैलेंस भी बना के रखना है। that अगर आप वहाँ जाके बैठ रहे हो that आपने अपने आप को थोड़ा इस तरीके से फील नहीं करना कि आप काम जी अगर, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक मेरे बच्चों में से, हमारे जितने भी इदारे के बच्चे हैं उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हाँ उन्हें लग रहा हो कि नहीं अगर उनके पास है हम तो बेचारे ऐसे हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दे आर ऑल वेरी गुड और बहुत अच्छे बच्चे हैं। जबरदस्त। इमन, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त एक जिनी आपके सामने खड़ा है और वो आपको कह रहे हैं कि कोई सी 3 विशेस आई एम गोना फुलफिल फॉर यू, व्हाट दे आर गोइंग टू बी? What they are going to be. हेलो जिनी, वेटिंग। इमन इज गोइंग टू टेल अस। यस। अच्छा, फर्स्ट विश, हाँ एक विश मेरी ऐसी है कि जैसे मेरा दिल करता है पाकिस्तान में मैं जिसको देखती हूँ कि हाँ अगर ये परेशान है या कुछ, इवन मैंने काफ़ी अभी मैं रिश्ते में कभी जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई बाइक वाला है वो ऐसे बाइक ड्रैग करके लेके जा रहा है क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया कुछ भी, तो वो मुझे इतना फील होता है कि जैसे उसके पास, आई डोंट नो उसके पास है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे ही इज इन अ प्रॉब्लम, और मैं उसको देख के उसी वक्त दुआ करती हूँ कि यार जिसकी भी कोई मुश्किल है उसके सबकी परेशानियां वगैरह दूर करते हैं। तो मेरी विश है कि पाकिस्तान में जितने बेचारे लोग थोड़े से परेशान हैं मसलों में, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। इमन ने बात ही खत्म कर दी, स्टोरी खत्म होगी, सबकी परेशानियां दूर होगी। नहीं सीरियसली आई नो ऐसा नहीं हो सकता, बट आई वांट कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं हर किसी की मुश्किल है, यानी कि जिनी ने भी जो काम करना है वो स्पेसिफिकली एमन के लिए नहीं करना है, जिनी इज गोइंग टू वर्क फॉर द एंटायर पाकिस्तान। वेरी वेल सेड। जिनी के पास बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है। तो ऐसा है। एंड द सेकंड वन इज कि जो मेरे बच्चे हैं हमारे इदारे के, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं, और मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर कोई वहां से कोई ऐसे टैलेंटेड बच्चे निकल आते हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे निकल आएंगे, लेकिन अगर ऐसे और किसी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। जबरदस्त। थर्ड वन अपने लिए भी कुछ मांग लो। I don't have any wish for myself. I have everything alhamdulillah. और मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है जो मैं कहूँ कि हाय काश कि ये मेरे साथ हो या काश ये मुझे मिल जाए, एनीथिंग इस किस्म का कुछ भी नहीं है। बस थर्ड वन इज आई हैव अ लिटिल डॉटर, तो हाँ लवली, तो I never knew that by the way. तो आई विश कि वो बस उसी के लिए बाकी सारी विशेज हैं कि वो थोड़ी क्या रहे, क्या कह सकते हैं उसको, what would I say? I can read your mind, being a parent myself. Inshallah ta'ala, even since you are doing a lot for the other children, Allah ta'ala is definitely going to pay. हाँ, ये भी मेरी विश है कि अगर थर्ड वन मेरी विश ये होगी कि अगर जैसे मैं और शाहवेज उसके जो फादर हैं, हम लोग बच्चों के लिए और दूसरों के लिए कर रहे हैं, उसके दिल में भी अल्लाह ताला यही सारी चीजें डाले। क्यों नहीं? कि जिस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे अंदर है जो शाहवेज, जितना मैं नहीं कर रही जितना शाहवेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से वो अपने फादर को देख के उसके अंदर भी सारी चीजें हो कि वो अपने फादर को देख के उसके अंदर भी सबके लिए ना हमदर्दी और सबको साथ ले लेकर चले। माशाल्लाह, lovely speaking to you, Ayman. Thank you so much for joining us today. And it was lovely talking to you. Take good care of yourself, stay blessed always, and keep smiling like you always do.